Okay. Pritha, what is their syllabus then? Ma'am, our syllabus is first chapter, that is of honeydew. That is what? Honeydew, chapter number 1, the best Christmas present in the world, Ant and the cricket, and grammar, figures of speech and verbs. So we have done almost. Ma'am, I have not done verbs because I was not there that time. Verbs. You did not know what a verb is? Ma'am, we know we are done in school, but just can you revise? So, okay, let me revise everyone, please. Before we start clauses, verbs. Yes, Pritha, verbs में आपके में क्या है? Transitive, intransitive verbs हैं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन भी है। देखो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैम ये तो पूरा एक टॉपिक बन गया। नहीं, शॉर्ट में करवाऊंगी, अभी उतना पूरा नहीं करवाऊंगी। Verb is action word. Okay, whatever we do when we get up in the morning till we wake up next day, every moment we are doing something, and that is called verb only. And right now what I am doing? I'm teaching. I'm teaching. Verb. What you are doing? Learning. Studying. Learn, understand. So all these are verbs. Action words or doing words? Action word or doing words between. All these are verbs. मैम हमें ये लिखना है। क्या? हमें ये All लिखना these है। are. हाँ बोलो। मैम बोला तो सही, ये हमें लिखना है। हाँ लिख लो ना, अरे क्या हो गया? मैम क्लॉजेस के बीच These are verbs only. Okay. Even when we sleep, so to sleep is also verb. When we see a dream, that is also a verb. जा ना। अगर हम खाली बैठे हैं चुपचाप तो भी हम कुछ सोच रहे हैं, वो भी वर्ब होता है. So all these are verbs. Okay, done. Done, everyone? Yes, Pritha, ma'am. Yes, ma'am. fine. Yes, ma'am. Without verb, no sentence is possible. अच्छा, जिस verb की absence में sentence possible नहीं होता, उस verb को क्या बोलते हैं? फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब। Good.
प्रीता मैंने तो कितना सारा कुछ तो करवा दिया, अब तो आप कह रहे वर्ब भी आते हैं। टेंसेस करवाए, टेंसेस वर्ब के बिना नहीं होते। But ma'am, we joined late. हाँ, but whatever I explained, that whole was based on verbs only. आपने वीडियोस नहीं फाइंड करे, आप उसमें हो, वो जो SPGT की ऐप है उसमें होगे ना? Yes, ma'am. हाँ, तो उसमें होने चाहिए। चलो मैं फटाफट करवा दूंगी, ठीक है? ट्रांजिटिव वर्ब वो होते हैं जिसमें हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, ठीक है? जैसे कि she performs the task bravely. Okay, so this is the verb. Okay, अगर हम इसके ऊपर what से या फिर to whom से क्वेश्चन करते हैं और कोई आंसर आता है, then this verb is transitive verb. आंसर So आता है। what she- यार एक्सप्लेन करोगे नहीं? What she performs? The task bravely. Tax. The task. Task है, bravery नहीं है। The मैम task. टास्क ब्रेवली। So इसका आंसर आया, इसका मतलब ये जो है आपका ऑब्जेक्ट है और ये जो वर्ब है आपका वो ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है? मैम एक सेकंड लिखने देना। Next. Two and two make four. So what is the verb? Make. मेक। अब क्वेश्चन करेंगे इस पे what से या to whom से? What, two and two make 4 4 is the four. Four. तो आंसर आया, इसका मतलब है this is the object and this is transitive verb, Transitive. ठीक है? So what का या to whom का दोनों में से किसी एक का भी आंसर आएगा तो वो वर्ब आपका ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। Now I am moving further. मैम 1 minute. Ma'am, how we can understand that the 4 is an object? अरे हमने क्वेश्चन नहीं किया वर्ब के ऊपर, Oh, वर्ब के ऊपर क्वेश्चन करेंगे व्हाट से या फिर टू whom से। अगर आंसर आता है तो जो आंसर आया है वो ऑब्जेक्ट है और जिसके ऊपर क्वेश्चन किया था वो वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब है। okay, ma'am. What 2 and 2 makes? Now I am moving further. मैम हाँ जी, मैम आपने जो समझा है उसका वो शॉर्ट में थोड़ा समझा दो ना, क्योंकि मेरा कनेक्ट नहीं हो रहा था तो मैंने लैपटॉप रिस्टार्ट किया फिर से कनेक्ट।
ओए डेविड ऑलरेडी हो चुके हैं, दिस इज नथिंग न्यू, ओके मैम। ये ऑलरेडी हो चुका है तुम्हारा, तुम देखना एक बार हाँ। ट्रांजिटिव में, उसमें याद आ अच्छा। जाएगा। हाँ मैम, वो आपने करवा दिया है। Transitive. मैम कोई बार बार अनम्यूट हो रहा है। Chalo. The box fell down suddenly. Now in this sentence, what is the verb? मैम फेल। Fell. अब वही पुराने वाला मेथड, fell के ऊपर क्वेश्चन करेंगे, what या to whom. What to whom? What the box fell? No, ma'am, no answer. डाउन डाउन। नहीं, what का down answer आता है कोई. नो मैम। To whom the box fell? Ma'am, it is not. Means the answer. नहीं आया. नो मैम। No, ma'am. क्वेश्चन बने आंसर ही नहीं। हाँ, तो जब इनसे क्वेश्चन करने के बाद आंसर नहीं आता तो ऑब्जेक्ट है ही, आंसर नहीं मतलब ऑब्जेक्ट नहीं, तो ये जो वर्ब है ये कौन सा वर्ब होगा? इंट्रांजिटिव। In transit. इसमें कौन सा वर्ब है? मैम फ्लू। Ma'am, flew. Ma'am flew. क्वेश्चन करेंगे, अब व्हाट द बर्ड फ्लू? मैम कोई आंसर ही नहीं आएगा। Ma'am. टू whom the bird flew? Ma'am, no नो answer. मैम। No answer, ma'am. It is intransitive. So, ma'am, it will be intransitive. चलो अब हम क्लॉजेस पर चलेंगे, अभी ये हो गए ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव। हमें एक मिनट मैम लिखने देना मैम। हाँ लिख लो, मैं पानी पी के आती हूँ। यस मैम। इंडेक्स। ओके, हाँ हमारे स्कूल में जो वर्ब करवाया उसमें तो कोई ट्रांजिटिव है ही नहीं। क्या? हमारे स्कूल में हम जब वर्ब करवाया था ना तो उसमें तो कोई ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव करवाया नहीं, सिर्फ फाइनाइट और नॉन फाइनाइट करवाया। ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव ना आगे 7th 6th में होता आ रहा है, तो मे बी उन्होंने ये कंसिडर कर लिया होगा कि नाउ यू नो, नाउ वी मूव फर्दर, तो उन्होंने पीछे का नहीं बताया, आगे का
नॉन फाइनाइट और फाइनाइट। ठीक है, अच्छा ओके। जब मैंने फ्रेजेस एंड क्लॉजेस मैम यू आर म्यूटेड। तो किसी को याद है कि मैंने क्या इंट्रोडक्शन दिया था, कुछ थोड़ा सा? क्या मैम? यस मैम, मैं तो लिखा भी है पूरा। बताओ। ये सब आपने ऐसा बोला था कि जो फ्रेजेस होते हैं हम क्वेश्चन करते हैं व्हाट, मैम जो मैम और क्लॉज होता फिर है वो आपने वो एक पार्ट होता है मैम बड़े सेंटेंस का। हाँ मैम, और जो मैम फ्रेज होता है मैम, जो मैम फ्रेज होता है वो मैम फुल मीनिंग लेता है, लेकिन क्लॉज जो होता है वो मीनिंग नहीं लेता, मतलब वो सेंस नहीं होता उसमें। ओ भाई, वो फ्रेज में मैम, वो फ्रेज में मैम सेंस नहीं क्लॉज में होता। मैम क्लॉज में मैम थोड़ी सी सेंस होती है, क्लॉज में थोड़ी सी सेंस होती है। एंड अरे मैम भाई, मैंने बताया था फ्रेज में थोड़ी सेंस होती है, क्लॉज तो पूरा सेंटेंस जैसा होता है, वो तो पूरे सेंस के साथ होता है। लेकिन क्लॉज की ये होती है डेफिनेशन की वो एक बड़े सेंटेंस का छोटा सा पार्ट है। अब वो अगर एक बड़े सेंटेंस का पार्ट है छोटा सा, और वो खुद भी एक सेंटेंस के जैसा है, दैट मीन्स कि वो बड़े सेंटेंस में उसके अलावा कोई और भी सेंटेंस होगा। हाँ ओके, मैम। अब अगर कोई और भी सेंटेंस है तो वो भी इस बड़े सेंटेंस का पार्ट होगा। अगर ये वाला इसका पार्ट है, तो ये जो दूसरे वाला है वो भी तो इस बड़े वाले का पार्ट है, तो ये भी क्लॉज है, ये भी क्लॉज है। और क्लॉज की ये रिकॉग्निशन है कि उसमें सब्जेक्ट वर्ब दोनों चीजें आती हैं, और फ्रेज में वर्ब नहीं आता। ठीक है, तो देखो ओके मैम कल हमने आप आप एक सेंटेंस दे रहे थे, उसमें से हमको है ना डिफरेंट फ्रेज वो गैस करने थे। यस मैम मैम, हमने कौन मैम सा फ्रेज पहला है? सेंटेंस लिखवाए थे मैम। तो एडवर्ब वाला हो चुका ना। अब तुम बीच बीच में ना, जब मैं ये स्टार्ट कर देती हूँ फिर तुम मत बताया करो कि क्या कर रहे थे। ये स्टार्ट करने के बाद ये रब करके पहले वर्ब करना पड़ा, अब दोबारा से वो नहीं करेंगे, वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब एक आपको हाँ मैम, आपने करवा दिया था। तब कर लेंगे, ठीक है। यस मैम, आपने करवा दिया था। डन। यस मैम। मैम Yes, ma'am. अब देखो, अभी कुछ मत लिखना। अब देखो ये सेंटेंस, as she came he had gone। अब तुम देख रहे हो कि अगर हम इसको हटा दें उधर वाले को, खाली इस पे ध्यान दो, तो ये एक पूरा सेंटेंस है कि नहीं, सब्जेक्ट भी है वर्ब भी है। ठीक है, ओके। सो अब ये हो गया, अब इसको छोड़ दो, इस पे ध्यान दो। He had gone,
सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, तो ये भी फुल सेंटेंस है। लेकिन फिर भी ये जो है इस पूरे सेंटेंस का पार्ट है। ऐसे ही ये है, वो भी इस पूरे सेंटेंस का पार्ट है। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी एक क्लॉज है और ये भी एक क्लॉज है। देखो ध्यान से, ये भी एक सेंटेंस है छोटा सा, ये भी एक स्मॉल सेंटेंस है। ये स्मॉल सेंटेंस इस पूरे बड़े सेंटेंस का पार्ट है और ये स्मॉल सेंटेंस इस पूरे बड़े सेंटेंस का पार्ट है। तो ये भी क्लॉज, ये भी क्लॉज। हुआ कुछ क्लियर? यस मैम। इतना लिखो मैम पहले। तो डेफिनेशन में आपने वर्ब के बाद ब्रैकेट में क्या लिखा है? फाइनाइट, मतलब कि दो Okay. तरह के वर्ब्स होते हैं, नॉन फाइनाइट और फाइनाइट। तो हम ये मेंशन करेंगे ना कि ये वाले क्लॉजेस में फाइनाइट वर्ब आएगा, नॉन फाइनाइट की कोई वैल्यू नहीं है इधर। हाँ मैम लिख दिया। Done? यस हाँ मैम। मैम। Yes, ma'am. ठीक है, अब ये देखो आप लोग कि एक बात होनी चाहिए कि अगर दो छोटे सेंटेंस एक ही सेंटेंस में बड़े सेंटेंस में आ रहे हैं, इसका मतलब दोनों जॉइंट है। करेक्ट? यस। जॉइंट है। अब ये भी होना चाहिए ना कि अगर दोनों जॉइंट हैं तो किसी एक वर्ड की हेल्प से जॉइंट होंगे वो। हाँ, कंजक्शन। कंजंक्शन। हाँ करेक्ट, तो वो किसी एक वर्ड की हेल्प से जॉइंट है, तो उस वो वर्ड यहाँ पे कौन सा है? When As, ठीक है, As. तो ये क्या है? कंजंक्शन। तो ये बात ध्यान रखना, जब क्लॉजेस होंगे, टू क्लॉजेस, अगर क्लॉजेस की बात हो रही है, इसका मतलब वन सेंटेंस में एक से तो ज्यादा ही क्लॉज होंगे। अगर मान लो ये है ही नहीं तो ये क्लॉज थोड़ी, ये तो सेंटेंस ही बोल देंगे इसको सिर्फ। इसको क्लॉज कब बोलेंगे? जब एक और साथ में है और तो साथ वो में उसका joint पार्ट है। हो। ठीक है ना? हाँ, जब पार्ट होगा तभी क्लॉज होगा, नहीं तो वो सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, Yes, ma'am. अब ये जॉइंट है एक कंजंक्शन की हेल्प से। अब इस बात को याद रखना कि वो जॉइंट है, क्योंकि ये बात फिर आगे यूज होगी। ठीक है, अब चलो हम आगे चलते हैं। मैम हमारे टेक्स्ट बुक में तो एक बहुत बड़ा एक्सरसाइज दिया हुआ है पहचानने का कि कौन सा सेंटेंस फ्रेज है और कौन सा क्लॉज। अब देखो इसके अंदर क्या होता है, वही आपके दोनों आएंगे क्लॉजेस और जॉइंट होंगे एक कंजंक्शन से। ठीक है, अब क्या होता है कि ये वाला कंजंक्शन क्लॉज है और एक की क्लॉज है। ठीक है, ये दोनों किससे जॉइंट है? दैट। ठीक है, अब क्या होता है कि जो दोनों क्लॉजेस है ना, कभी कभी उसमें से एक तो मेन क्लॉज होती है और दूसरी होती है सबऑर्डिनेट क्लॉज। मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट। मेन क्लॉज का क्या काम है, अभी कुछ लिखो मत, आपको मैं लिखवाऊंगी, समझ में आ जाएगा। मेन क्लॉज का क्या काम है, उसको किसी की जरूरत नहीं है, वो अपने ऊपर डिपेंड है, उसको किसी की नीड नहीं है। लेकिन सबऑर्डिनेट क्लॉज को मेन क्लॉज की जरूरत है।
उसके बिना उसका काम नहीं चलता है। ठीक है, देखो अब जैसे इसके अंदर क्या है कि जो कंजम्पशन है ना उसके यूजुअली बाद में जो होती है ना उसको बोलते हैं जो कंजम्पशन के एकदम बाद में होती है वो होती है सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट का एक और भी नाम है डिपेंडेंट क्लॉज। कंटेंट क्लॉज। और मैम जो मेन क्लॉज होता है उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज। जो मेन क्लॉज है इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट और एक और भी नेम है इसका प्रिंसिपल क्लॉज। जो मेन क्लॉज है उसका नाम प्रिंसिपल क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और जो डिपेंड करती है वो डिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट क्लॉज। कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी कुछ और एग्जांपल दूंगी, इट विल बी क्लियरर टू यू। मैम हाँ जी, मैम जो दैट के पहले है योर आइडिया इज, मैम वो क्या खुद में कंप्लीट है? योर आइडिया इज इनकम्प्लीट हाँ। लग रहा है वो योर। नहीं, योर आइडिया इज। अभी और एग्जांपल आएंगे तो ज्यादा होगा क्लियर। अभी ये करो पहले फिर आ जाएगा। जो ये है ना ये अंदर वाला पार्ट इसके अंदर है। योर आइडिया इज मतलब ये पार्ट जो है इसके अंदर है। अब यहाँ अगर हम ऐसे लिखिए दैट दे हैव टू कंप्लीट तो इसको लगता है कि दैट दे हैव टू कंप्लीट इट सीक्रेटली, मतलब कुछ आना चाहिए पहले दैट के पहले। नेक्स्ट एग्जांपल दो। यस मैम बेटा मैम रुको मैम मैं लिख रहा हूँ। Yes, you will succeed if you work hard. कंजंक्शन कौन सी है? मैम इफ if is the condition. बाद वाली कंजंक्शन के बाद वाली कौन सी क्लॉज होती है? Subordinative. मैम सबऑर्डिनेट Subordinate. Subordinate clause. And this will be main clause. Main clause or Principal clause. dependent clause or independent clause. Sorry, principal clause. अब मैं आपको डिक्टेट कर रही हूँ सेंटेंस and you have to find out which is principal and which is subordinate clause. Ready? मैम वेट अ मिनट। मैम हमारे टेक्स्ट बुक में तो ऐसा एक्सरसाइज हुआ है कि यस मैम रेडी। clause and which sentence is phrase.
क्या? हाँ मैम, मेरे टेक्स्ट बुक में ऐसा एक्सरसाइज दिया हुआ है कि यू हैव टू फाइंड फॉर्मल सेंटेंसेस वेदर फ्रेज और वेदर इट इज क्लॉज। अरे तो वो तो और भी इजी है, फ्रेज और क्लॉज तो वैसे ही मालूम पड़ जाएगा। फ्रेज में वर्ब नहीं आता, क्लॉज में वर्ब आता है। अगर मैं आपको कोई फिलअप दूं और उसमें बोलूं कि फिल इन द ब्लैंक विद फ्रेज, तो इस बात का ध्यान रखना कि वन वर्ड आंसर नहीं होगा वो। लाइक शी वॉक्स, आगे बोलो। In the Early park. in the park. In the She park. every evening. Lady देखो, in the park. she walks in the park। अब इसमें आपने एक से ज्यादा वर्ड यूज किया, इसके अंदर कोई वर्ब नहीं आया, तो ये फ्रेज है। अब अगर मैं बोलूं she walks और इसमें आप क्लॉज करो फिल, Sir, she walks very fast. तो वेरी फास्ट, इसमें क्या वर्ब है? क्लॉज आना चाहिए, क्लॉज बताए मैंने अभी। she Ma'am. walks, हाँ Ma'am, ऐसा she walks to lose her weight as she want to eat fatty items. क्या? फिर से बोलो, तुम्हारी आवाज बहुत ब्रेक होती है यार। मैम, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि she walks far as she was in dieting as she want to eat much food. यार कोई और बताओ वो क्या बोल रहा है? मैम वो मैम, बहुत मुझे भी लंबा पता नहीं चल sentence रहा। बोल रहा है। पता मुझे भी नहीं पता चल रहा भाई। अच्छा मैम सुनो तो मेरी बात, नेक्स्ट सेंटेंस सुन लो एक मिनट। अब जैसे she walks बोला, मैंने आपको एक बात बताई थी, क्लॉजेस वाले में कंजंक्शन भी आएगी, तो आप she walks के बाद कोई कंजंक्शन लगाकर सेंटेंस बना सकते हो। she walks while I was Talking with playing। her friend. यार एक जना बोलेगा या मैं बोलूंगी या तुम, अगर मैं बोलूं तो तुम चुप हो जाओ, फिर तुम बोलना। क्या बोला मैंने? she walks while I was playing, तो while लगाकर मैंने कनेक्ट कर दिया दूसरा सेंटेंस। अब दूसरा सेंटेंस कनेक्ट किया है मतलब क्लॉज, अब ये फ्रेज नहीं है। तो ये ध्यान रखना आपको, फिल इन द ब्लैंक में फ्रेज बोला है तो उसमें वर्ब नहीं आना चाहिए, और अगर क्लॉज बोला है तो कोई कंजंक्शन के साथ आप सेंटेंस पूरा दूसरा बनाएंगे। हाँ तनिष्का, आप क्या बोल रही हो, बोलो। मैम मैं ये कह रही हूँ she walks while talking with her friend. she walks while talking with her friend. हाँ करेक्ट है, while talking with her friend या while I was playing, कुछ भी। अब ये क्या है कि आपको धीरे धीरे थोड़े से क्लियर होंगे, ठीक है? थोड़ी पेशेंस रखनी पड़ती है। आप हर बार बोलो कि आया नहीं, तो पेशेंस रखो। चलो अब आपको ये बताना है, फाइंड आउट, क्वेश्चन लिखना है एवरीवन। फाइंड आउट द प्रिंसिपल क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज। Find out the principal clause and subordinate clause. मैम, हमारे क्लैरिटी के लिए हम लोग अगर प्रिंसिपल क्लॉज ना लिख के मेन क्लॉज लिखे चलेगा? क्या प्रिंसिपल को? मैम वो ये कह रहा है कि हम प्रिंसिपल की जगह मेन क्लॉज। अरे प्रिंसिपल की जगह क्यों लिखना है, उसको स्लैश करके साथ में लिखो, प्रिंसिपल, मेन, इंडिपेंडेंट, तीनों लिख मैम दो। आप एक बार वापस रिपीट करोगे क्वेश्चन? क्वेश्चन अच्छा, फाइंड आउट द प्रिंसिपल क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस। Clause from the following sentences.
मैम आप स्टॉप हो गए। मैम मैम योर स्क्रीन इज स्टक, मैम योर वीडियो। मैम का नेटवर्क गया। चलो रेडी? मैम आपकी करें आपकी। हाँ मैम। यस मैम। हाँ मैम। नंबर वन, नंबर वन, come near, come near, comma, come near, comma, so that I can return your purse. Come near so that I can return your purse. Yes, Jay. Ma'am, conjunction is ma'am so, and ma'am main clause is come near, and that I can return your purse is ma'am subordinating clause. बेटा so that पूरा conjunction. Okay ma'am, so that I can return your purse. ठीक है, तो वो सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ठीक है, और आपको बताया भी था कंजंक्शन के बाद वाली सबऑर्डिनेट होती है, तो सो दैट के एकदम बाद जो आ गई वो सब कौन सी है? सबऑर्डिनेट यानी कि डिपेंडेंट क्लॉज। और उसके पहले वाली जो है वो कौन सी है? मेन, प्रिंसिपल, इंडिपेंडेंट, कुछ भी बोल दो। Main clause. Yes, ma'am. नेक्स्ट, nobody has idea. Nobody has idea how the earth was created. Ma'am, please repeat. Nobody has idea how the earth is created, how the earth was created. Ma'am, how the world was created? Ma'am, can I? Hands But raise can I करो use- ना। मैंने रेस दी है। कौन है? यस। यश, चलो बोलो। हाँ मैम। मैम हाउ है वो, हाउ द है नहीं मैम, हाउ कंजक्शन है। nobody has idea वो मेन क्लॉज है, और the earth was created subordinate clause है। The earth was created क्या है? subordinate clause। ठीक है, अब एक बात सुनो, आप लोग जो मुझे बता रहे हैं ना कि कंजंक्शन ये है, दैट इज ओके, कंजंक्शन वही है, लेकिन सबऑर्डिनेट क्लॉज कंजंक्शन से स्टार्ट होकर ही होती है। मतलब सबऑर्डिनेट के अंदर कंजंक्शन रहता ही है, तो तुम सबऑर्डिनेट क्लॉज को कंजंक्शन से अलग मत करो। कंजंक्शन के साथ साथ जो है पूरी वो सबऑर्डिनेट है। जैसे अभी कौन सी लिखी है आपने? हाँ, हाउ द अर्थ वाज क्रिएटेड, ये पूरा सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ठीक है, Yes, ma'am. नेक्स्ट, I know the reason. Ma'am, what? I know the reason. I know the reason why you are late in the class. I know the reason why you are late in the class. Ma'am, may I?
Ma'am, can I? Ma'am, why you Wait, answer wait, करते हैं? wait, I will try. I will check. ये क्या है? सृजिता बनर्जी, यूथ स्टूडेंट है कोई हमारा? मैम वो साग्निक है। साग्निक, तुम क्या नए नए नेम से एंटर होते हो? मैम वो मेरी बहन की नाम है। तो मुझे क्या पता, मैं तो यही समझूंगी ना। Sorry. अच्छा, ओके। जेरम, मैं उल्टे हो गए। चला गया मैम एक क्या? बार क्वेश्चन तो रिपीट करो ना। जेरम, know the पहले आप reason अनम्यूट करो, नहीं why- तो मैं यहाँ से रिमूव कर रही हूँ तुमको आज। I know the reason why you are late in the class. हाँ मैम वो यश ने सेंटेंस रिपीट करने के लिए पूछा था। हाँ, मैंने सुन लिया। वेट करोगे तुम लोग जरा। जेरम, आर यू आंसरिंग? आर यू गोइंग टू आंसर दिस? नो। नेक्स्ट इज मैम आंसर तो किसी ने बोला ही नहीं। आंसर मैंने वो कहा ही नहीं। विमांशु, और आप बोलो आंसर। मांजर, मैं बोलूं? यस मैम। हाँ मांजर, प्लीज वीडियो ऑन करो आप। हाँ, अब बताओ। क्वेश्चन ये था, आई नो द रीजन व्हाई यू आर लेट इन द क्लास। मैं बोलूं? रुद्र, can you please wait? Meet, you try. Meet. कनेक्टिंग टू ऑडियो हो रहे हैं। Meet is not there. मैम उसने कनेक्ट ही नहीं किया, ऑडियो से ही कनेक्ट नहीं हुआ। मैम वो हमको सुन नहीं सकता। तो यहाँ पर क्या कर रहा है सिर्फ वो? अटेंडेंस। टाइम पास। हाँ ठीक है, चलो ओके। मैम मैं ट्राई करूँ? वेनिशा, Yes, ma'am. yes Venisha, you try. Ma'am, why is the conjunction? And I know the reason is the principal clause, and why you are late in the class in a class is a subordinate clause. करेक्ट। साग्निक, तुम क्या कह रहे हो? मुझे क्लियर करो। मैम यू आर लिख कर छोड़ दिया, इसका क्या मीनिंग हुआ? इस बात का क्या मीनिंग है? मैम यू आर। मैम वो ऐसा कह रहा होगा, मैम यू आर नॉट ऑडिबल। मैम वो ऐसा कह रहा होगा, यू आर नॉट ऑडिबल। तुमको ऑडिबल हूं मैं? हाँ मैम मुझे तो audible। आप ऑडिबल हो, मुझसे आप ऑडिबल नहीं होगे। अब यार मैं क्या करूं, सबके घर तो जाके मैं टेक्निकली करेक्शन कर ही नहीं सकती। चलो नेक्स्ट। अब तो आ रहे हैं ना समझ में ये वाले? हाँ मैम। हाँ मैम ठीक आ है। गए। हाँ तो थोड़ा सा हल्का सा चेंज करके मैं ले रही हूँ। मैम यू आर शेकिंग। नहीं, आई एम नॉट शेकिंग। साग्निक, आई एम नॉट शेकिंग। मे बी आपका फोन शेक कर रहा होगा। मैम उसका नेट गया है। हाँ चलो नेक्स्ट। इफ इट डज नॉट रेन, if it does not rain, I shall meet you. I shall मैम ये Meet कितना you. इजी हो Meet. गया। M मैम, ये double बहुत E T, meet.
If it does not rain, I shall meet you. Chalo, now this will be told by Drashti, okay? Ma'am, can you repeat the sentence? Ofo. If it does not rain, I shall meet you. Hello, ma'am. May I audible? May I audible or am I audible? अरे मैम हाँ, कुछ मेरी आवाज सुनते हो मैम? भाई तुम काफी audible हो. मैम हाँ उसकी आवाज बीच में कट And you रही थी। may नेट चला गया था गलती से मैम. मैं आपको लिख रहा था मैम. आर एम आई ऑडिबल उसकी जगह मैं लिखते आर यू शेकिंग. Sagnik, you leave. I understood you are in the class. Yes, Drashti. Wait, Jay. Ma'am, answer is if it does not rain is main clause, and I shall meet you is subordinate clause. Chalo, ठीक है. Next. Is it correct? No, ma'am. मैम इसमें कंजक्शन पता नहीं चल रहा है. तो तुम लोगों ने पूछा ही नहीं है. मैं बोलूं प्लीज मैं बोलूं One moment. Please listen. आप लोगों को मालूम है इसमें कंजंक्शन कौन सी है? मैम Yes, ma'am. हाँ मैम. आई If conjunction है तो if के पास क्या लिखा है? If it does not rain, तो वो conjunction के साथ वाला पूरा subordinate clause, and I shall meet you is Main clause. main. I thought कि कोई बोलेगा, but किसी ने बोला नहीं. मैंने मैम बोला आपको चांस ही नहीं दिया. मैंने वो चैट भी किया था. मुझे तो आता था आंसर नहीं. हाँ तो मैंने पर्पसली हाँ जी बोला ना. इसका मीनिंग तो ये कि I was confusing you. और हम हो गए. Ma'am, can you repeat the answer? I was disconnected. If it does not rain, subordinate है, and I shall meet you, main, principal, independent. Next question. Correct है. Next. Though he is poor, comma, he is honest. Though he is poor, comma, he is honest. मैम मैं बोलूं तनिष्का. हाँ बोलो. मैम दो कंजक्शन है और दो ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट ये पूरा सबऑर्डिनेट क्लॉज है. क्या? Though he is poor क्या है? मैम दो इज कंजक्शन एंड दो ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट वो पूरा सबऑर्डिनेट क्लॉज है. हाँ तो इंडिपेंडेंट कहाँ गया? Ma'am, he is honest is independent. Yes, कोऑर्डिनेट क्लॉज होगा और ही इज ऑनेस्ट मेन क्लॉज होगा. मैम करेक्ट. साग्निक, आज आप प्लीज ना बोले. ओके मैम. समझ में नहीं आ रहा. Though he is poor clause, he is मैम आपकी honest, स्क्रीन चली गई. principal clause. Okay? आपकी हाँ अब आई. एक और लिख दो लास्ट. Violence is just.
Violence is just where kindness fails. Violence is just where kindness fails. Yes, Pritha, बोलो. मैं बोलो, एक भी बार नहीं बोला मैंने. कोई बात नहीं. Ma'am, my half sentence is left, so please can you repeat so that I write and tell the answer. Which one? Ma'am, this one, violence is just where the kindness fails. Okay, ma'am. मैम दो नहीं आएगा. हाँ मैम, दो नहीं आएगा. चलो कोई और बोलो. हाँ बोलो. मैं बोलूं. Yes, Pritha आ गया आपको? Yes, ma'am. Ma'am, Yeah, in this, speak. ma'am, in this, just where the kindness fails is the subordinate and justice consumption. No. May I? Teen. Ma'am, where is conjunction? Where kindness is subordinate clause. Ma'am, after that, Where kindness fails. where kindness is a subordinate clause. Where kindness fails. Fails था क्या भाई? Okay, ma'am, fails. Fails is Peter. And violence is just main clause. Main clause. हाँ. अब मुझे बताओ कि तुम लोगों का कोई दूसरा सेशन है? हाँ मैम, है साइंस का. मैम है. हाँ तो रुको, मैं बात कर रही होती हूँ, उनको फिर एंटर करने के लिए बोलती हूँ. Okay. अभी आ रहे हैं. अच्छा, तुम लोगों को कोई वर्कशीट मिली है? ma'am on tsunami chapter. हाँ. Yes, ma'am, we got. खत्म. ठीक. कोई तुम में से मुझे बताएगा कि मैंने अभी तक कौन कौन से ग्रामर के टॉपिक्स करवा दिए हैं अब तक? मैम मैं बताऊं? हाँ. कोई एक बता दो. मैम आपने अभी तक डायरी एंट्री करवा दिया है, वर्ब धीरे धीरे बोलो, धीरे. ठीक है मैम, आपने टेंस करवा दिया है, फिर आपने ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव करवा दिया है, फिर आपने आर्टिकल्स करवा दिए हैं, फिर डायरी एंट्री करवाया है, वर्ब्स करवाए हैं, पैसिव, प्रेपोजिशंस करवाए हैं. मैम गैप फिलिंग भी करवाया, गैप फिलिंग.
क्या? मैम गैप फिलिंग। गैप फिलिंग फिर मैम वो करेक्ट इनकरेक्ट वाला है। Gap मैम filling एडिट द मतलब पैसेज, इनकरेक्ट एडिट द पैसेज। मैम लेटर राइटिंग। एडिटिंग। एक सेकेंड, गैप फिलिंग, लेटर एडिटिंग, पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस तो बोलो। हाँ मैम पैसिव वॉइस। मैम लेटर राइटिंग भी। मैम ले- वर्ब्स भी। हाँ वर्ब्स। हाँ, वर्ब तो हो गया। एडजेक्टिव्स। क्या? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, एडवर्ब वगैरह नहीं बताए, Infinitives. नाउन भी नहीं बताए। Infinitives. सब्जेक्ट एंड मैम प्रेडिकेट। सिनोनिम और एंटोनिम। एडजेक्टिव, एडवर्ब, नाउन करवाए हैं मैंने? नहीं नो। नाउन नहीं करवाए। नहीं मैं नहीं करवाया। प्रोनाउन करवाया है? नो। नो मैम। मैम सिनोनिम और एंटोनिम करवाए। मैम सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सेंटेंस करवाए हैं ना? सेंटेंस नहीं करवाए? नो। नहीं मैम। हम सेंटेंस करवाए थे आई थिंक। नहीं मैम। मैम ट्रांसफॉर्मेशन। एक सेकेंड, सेंटेंस में मैंने वो नहीं करवाया, इम्पेरेटिव, डिक्लेरेटिव, नो मैम। नहीं हाँ? मैम मैम आपने नहीं करवाए। कुछ नहीं डिग्रीज, करवाए। इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज। ट्रांसफॉर्मेशन। मैम फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। हाँ, कितने अच्छे टॉपिक तो तुम भूल भी जाते मैम डिटर्मिनर्स। हो। एक सेकेंड, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट के बाद मैम डिटर्मिनर। क्या? डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स। हाँ मैम। मैम phrases and clauses. मैम स्टोरी। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। स्टोरी राइटिंग। कहाँ जा रहा हूँ? 7 पे था। ठीक। हाँ, ओके, इनफ। मैम इन्फिनिटिव्स। हाँ, वो नॉन फाइनाइट में हो गए। चलो, बाय ऑल। बाय मैम। Bye, ma'am. बाय। Bye, ma'am. थैंक यू मैम।